Hello and assalamu alaikum my YouTube family. You're watching SLO based learning platform and I hope that you guys are doing absolutely great. Today we are here with the topic that is sentences with different functions. So you have studied already about sentence, what is sentence, what are the parts of sentences, kinds, according to function, structure. We studied it in very detail. So today we are going to know how a sentence can function differently. So let's get started. Don't forget to subscribe the channel and like the video. So very first statement we are having is she eats breakfast every morning. So here is we are having the original sentence, and now we are going to change according to its different functions. So she eats breakfast every morning. If we are supposed to change it in question, how we are supposed to change? So ये हमारे पास है जी सिंपल प्रेजेंट, एंड जब हमने इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चेंज किया, एज वी नो इन आर सिंपल प्रेजेंट, इफ़ वी आर सपोज टू चेंज आर sentence, we will use helping verb do and does. So here with third person singular we add does, जबकि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है हम उसके साथ ऐड करते हैं डू. सो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट, देन हमारे पास आता है सब्जेक्ट, राइट आफ्टर सब्जेक्ट वी पुट मेन वर्ब, एंड देन फिर हमारा जो सेंटेंस है वो प्रोसीड करता है. सो यहाँ पर देखें इन क्वेश्चन हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आए, देन हमारे पास आ गया शी सब्जेक्ट, ईट मेन वर्ब एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, एंड एट द एंड यू कैन ऑब्जर्व कि एट द एंड क्या है, here at the end we are adding question mark. So whenever we are supposed to change our sentence, given sentence into interrogative, first of all you need to understand the framework of your time frame of your sentence. So जब आपको पता चल गया कि ये simple present में है, then आप देखें कि उसके helping verb क्या है. तो helping verb जो है automatically will come at the beginning of the sentence. Then यही जो हमारे पास sentence था, she eats breakfast every morning, we are supposed to change it into exclamatory sentence. So at the end sign of exclamation we added she eats breakfast every morning, और at the end हमने इसका sign of exclamation कर दिया. next यही sentence है she eats breakfast every morning, we are supposed to change it into imperative sentences in which particularly we are giving command. So जब हमने किसी को ऑर्डर प्लेस करना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, तो जो हमारे पास वी हैव स्टडीड इन आर प्रीवियस वीडियो कि जो इम्पेरेटिव मूड होता है उसमें हम सब्जेक्ट को ओमिट कर देते हैं. लाइक देखें, आप ये नहीं कह रहे कि लाइक सब्जेक्ट इज़ नॉट, एक्शन परफॉर्मर इज़ नॉट हियर, डायरेक्ट हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एक्शन हमारा स्टार्ट में आ जाता है. जैसे ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो एंड ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, open the door, close the door, stand up, sit down, open your notebook, eat it. तो ये हमारे पास कोई भी जब हमने ऑर्डर या कमांड देनी हो तो हमारे जो वर्ब है दैट कम्स एट द बिगिनिंग. फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इन आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे इंस्ट्रक्शन या कमांड देनी हो. फिर हमारे पास आ जाते हैं जी नेगेशन. अगेन वही सेंटेंस लिया हमने, शी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, एंड वी आर चेंजिंग इन टू नेगेटिव सेंटेंस. सो इन नेगेटिव वी आर एडिंग नॉट, शी डज़ नॉट ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. और हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है इन आर सिंपल प्रेजेंट वी डू नॉट ऐड हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब हमने इसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करना होता है तो वी आर सपोज टू ऐड हेल्पिंग वर्ब. सो इट डज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. सो दैट वाज द एग्जांपल कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट शी ईट्स ब्रेकफास्ट, एंड वी चेंज इट इन क्वेश्चन, exclamatory, command, and in negation as well. So let's move towards another sentence, that is question. So basically this is question, and original sentence, do you like coffee? Here you can observe helping verb is at the beginning, and at the end here is a sign of interrogation. So हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म है, नाउ वी आर सपोज टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट फंक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेंज इट इन स्टेटमेंट. सो इन वेरी फर्स्ट sentence we talked about statement were given, and statement was given and we changed it different in its different function, and here we are having क्वेश्चन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट इन स्टेटमेंट मीन्स कि आपका डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो आपने इसको सिंपली हेल्पिंग जो आपका सब्जेक्ट विल कम एट द बिगनिंग, फिर आपका आ गया वर्ब, एंड देन आपका
सिमिलरली आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यू लाइक कॉफ़ी। क्लियर। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसको एक्सक्लेमेशन में, यू लाइक कॉफ़ी। सो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन में मीन्स कि बस एक्सप्रेशन चेंज हो गया आपके और एट द एंड आपने ये साइन कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। देन आपका कमांड में है तो अगेन वी स्टडीड कि कमांड में क्या होता है कि हेल्पिंग जो आपका जो मेन वर्ब है दैट कम्स एट द बिगिनिंग, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है लाइक कॉफ़ी एंड एट द एंड अगेन ये आपके पास साइन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेशन, तो नेगेशन में यू डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज़ इन एक्सक्लेमेशन एंड वी आर सपोज टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट फंक्शन। सो यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस है जी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड। अब हमने इसे चेंज किस में करना है, सिंपल सबसे पहले स्टेटमेंट देनी है डिक्लेरेटिव में, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे फर्स्ट। सेकेंड में अगर हमने इसे क्वेश्चन में चेंज करना है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि हेल्पिंग वर्ब विल कम एट द बिगनिंग, इज इट अ ब्यूटीफुल डे एट द एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका है इंट्रोगेटिव में। देन कमांड में मेक इट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। नेगेशन में इट इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल डे। सो वी आर हैविंग सेंटेंस दैट इज़ कमांड, कमांड इज़ गिवन, इम्पेरेटिव स्टेट में है, इम्पेरेटिव मूड में है ये। सो हेल्प जो फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ हो रही है क्लोज द डोर एट द एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है और जो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी हैं उनमें भी। डिफरेंस ये है, डिफरेंस उनकी टोन से, इनके स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे इम्पेरेटिव हैं इन विच सब्जेक्ट इज़ ओमिटेड, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होता, ओमिट हो जाता है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होती है। सो इसका फंक्शन, इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करना है, तो दैट इज़ द डोर इज़ क्लोज्ड। डेक्लेरेटिव भी है ये। क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम विल यू क्लोज द डोर, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेशन में क्लोज द डोर एट द एंड, ये वाला साइन। नेगेशन में डू नॉट क्लोज द डोर। देन सेंटेंस आपके पास आ गया नेगेशन में, शी डजंट लाइक द टी। स्टेटमेंट शी लाइक्स द टी। क्वेश्चन में करेंगे तो डज शी लाइक द टी। एक्सक्लेमेशन में करेंगे शी लाइक्स टी एट द एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड कमांड में लाइक द टी। So these were the examples of sentences in its different forms, ठीक है। तो ये हमने आज इनकी प्रैक्टिस की। आपके बच्चों एग्ज़ाम में भी इसी तरह आता है, पर्टिकुलर इन क्लास 9th और 10th, कि आपको इस तरीके से दे विल प्रोवाइड यू ए सेंटेंस एंड इन ब्रैकेट देयर विल बी अ इंस्ट्रक्शन ओवर देयर एंड बाय फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शन आप उस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। वो अगर आपसे कहते हैं कि चेंज इट इनटू नेगेटिव, उसमें चेंज करोगे। इफ़ दे से कि चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब सपोज अगर हमारे पास इस सेंटेंस को वो कहते हैं कि सिंपल, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चेंज करें, तो आप कैसे करेंगे, शी इज़ लाइकिंग द टी, ठीक है। अगर वो आपसे कहते हैं कि शी इज़ लाइकिंग द टी को आप क्या करें, एक क्वेश्चन में करें इज़ शी लाइकिंग द टी, तो आपको वो जो फंक्शन वो प्रोवाइड करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन वो प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस के उस फंक्शन को चेंज कर देना है। सो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह ताला। मंडे से बच्चों के स्टार्ट होने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपके प्री बोर्ड फर्स्ट टर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उन पेपर्स की वीडियो भी आई ट्राई टू अपलोड कि डेली बेसिस पे उनको मैं देखूँ, उन पर वर्क करूँ। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।